Good morning everyone. Today topic is XML, which is from a web technology, and XML stands for the extensible markup language. Extensible markup language means it is expandable markup language, and in extensible markup language we can create our own tags according to the requirement of the data. We can create own tags. It means that when we studied HTML, in HTML we use the predefined tags like head tag, body tag, HR tag, that is horizontal rule tag, which is used to divide or separate the document section, P tag, which is used to paragraph tag, and various tags are predefined, which is not a self-descriptive tag, but in HTML we can create our own tags. It is used to store and transport the data. It is a self-descriptive tag and it is used to carry data, not to use to display the data. It contains self-defined tags. It is a platform and the language independent, and it helps in easy communication between two platforms. It means that suppose we have a two database, SQL server and the Oracle server, and we in SQL server में भी हम XML क्रिएट कर सकते हैं और Oracle में भी हम XML क्रिएट कर सकते हैं. जो भी हम डाटा क्रिएट करेंगे SQL सर्वर के हेल्प से XML में और Oracle सर्वर में XML के, जो भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो कम्युनिकेट करेगी सेम वे में ही वो कम्युनिकेट करेगी. दैट मीन्स कि चाहे वो डाटाबेस SQL का हो चाहे वो Oracle का हो, जो भी XML दोनों में अलग अलग फॉर्म होंगे वो एक एप्लीकेशन के साथ बिल्कुल कंपैटिबिलिटी शो करेंगे. सो अगर हमने डाटा ट्रांसफ़र भी करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड द लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, एंड इट हेल्प्स इन ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेटफॉर्म. Next is a feature and the advantages. First feature and the advantage is separate. It is separate data from the HTML. It simplifies data sharing, simplifies data transport. मतलब it is not used to display the data. It is used to transfer the data, and it increase data availability. Simplifies platform change. Platform change means that we can easily merge the one database into another database. For example, we have a one database that name as a SQL server and another is Oracle, and we want to merge this SQL server into the Oracle. It is very easy with the help of the XML. First we import the data into XML, and then XML will first we export the data into the XML, and then XML will import the data into the Oracle. It is very easily, and it simplifies platform change. इस बिहेवियर के साथ हम SQL सर्वर को Oracle में बहुत इजी वे से चेंज मतलब मर्ज कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द XML. अब XML में हमने ये बोला है कि इसमें हम सेल्फ टैग क्रिएट कर सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ सेल्फ कंटेन टैग्स. इट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड टैग्स. अब उसके लिए हम ये एक मैंडेटरी जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है ये हम लिखते हैं सब में, जिसमें क्या है XML का वर्जन लिखा है 1.0 इनकोडिंग 150 या अप टू. और सपोज हमने एक XML में एक प्रोग्राम ड्रॉ करना है XML में. तो XML में एक प्रोग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये हमारा हम सपोज कॉलेज पे कोई प्रोग्राम बनाएंगे. कॉलेज में क्लासेस होती हैं, 1 and 2 क्लासेस हमने ली है, एंड क्लासेस आर फर्दर, इट इज़ अ हिरार्की बेस्ड मतलब इन फर्स्ट वी हैव अ कॉलेज, एंड इन कॉलेज देयर इज अ क्लासेस, एंड क्लासेस कंटेन अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट कंटेन नेम एंड द रोल नंबर. Then how we can create XML program. First we have to write this basic mandatory line, that is XML version 1.0 encoding 150.859.
एंड नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या था, हमने क्या क्रिएट करना था, एक कॉलेज में हमने क्लास बतानी थी। क्लास 1 भी हो सकती है और हम एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस भी बता सकते हैं। और क्लासेस क्या कंटेन करती है, स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट फर्दर उनके नेम और रोल नंबर। जस्ट हमने ये चीज़ लिखनी है। और हम इस चीज़ को XML में कैसे लिखेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हेड मतलब हमारी कॉलेज से, कॉलेज टैग यूज़ करके। एंड कॉलेज के आगे क्या था हमारा, कॉलेज को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ अ रूट एलिमेंट। मतलब रूट एलिमेंट मीन्स जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है। और वी कैन ऑल्सो सेट दैट इट इज़ अ पेरेंट क्लास। ठीक है, दिस इज़ अ पेरेंट क्लास। और कॉलेज के बाद हमने क्या डिफाइन करना था, क्लास 1। अब क्लास वन डिफाइन किया। क्लास 1 में आगे क्या है हमारा, नेम स्टूडेंट का हम कोई भी नाम दे सकते हैं, दैट इज अ वरुण। एंड उसके बाद नेम को हमने क्लोज किया। नेक्स्ट इज अ रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम कर लिया एंड देन रोल नंबर को 1 है और इसको क्लोज कर दिया। और अगर इफ वी वांट टू स्पेसिफाई मोर रोल नंबर देन वी कैन क्रिएट इन दिस कॉलम। एंड सेकंड, उसके बाद हमने क्लास 2, वी कैन डिफाइन द क्लास 1 को क्लोज करना है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्लास 2 यूज करनी है। अब ये क्लास क्या थी, ये तो अगर हमारा रूट एलिमेंट है, पेरेंट क्लास है। और ये क्लास 1 क्या है, हमारी चाइल्ड एलिमेंट, दिस इज अ चाइल्ड एलिमेंट। और एक दूसरा चाइल्ड एलिमेंट कौन सा हुआ, क्लास 2 चाइल्ड एलिमेंट, सेकेंड वाला। और इसमें भी हमने क्या करना है, हम नेम स्पेसिफाई करेंगे अमित, और नेम को क्लोज करेंगे, क्लोज टैग यूज करके। और उसके बाद हमने रोल नंबर लिखना है इसका, और कोई भी रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, रोल नंबर। और फिर क्लास 2 को क्लोज करना है। और लास्ट में हमने किसको क्लोज करना है, कॉलेज टैग को। सो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि XML में हमने किसी प्रोग्राम को कैसे डिफाइन किया है। हमने एक कॉलेज लिया, वो रूट एलिमेंट है, हमारी पेरेंट क्लास है। चाइल्ड एलिमेंट, उसमें हम क्लास, जो चाइल्ड एलिमेंट है वो हमारी क्लास है, उसमें नेम रोल नंबर, फिर उसको क्लोज किया। फिर क्लास 2 में नेम रोल नंबर, फिर क्लास 2 को क्लोज किया एंड देन कॉलेज। सो इन दिस XML program, no tags are defined. No tags are defined means all tags are self-descriptive. क्योंकि हमने इसमें ना तो कोई बॉडी टैग लिया है, ना हेड टैग लिया है, ना इसमें HR बॉडी नहीं लिया, HR नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं यूज किया, कोई पैराग्राफ नहीं यूज किया, कुछ भी बोल्ड करने के लिए नहीं यूज किया, कुछ भी हमने ऐसा टैग ये इसमें नहीं यूज किया। सो ऑल द टैग्स आर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग, दैट इज कॉल्ड, इट इज अ एक्सपेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, what is the difference between the HTML and the XML? HTML is used to display the data, that means it is used to look and feel, whereas XML is used to transfer the data, that is called the transport and store the data. It provides markup language itself, or it provides framework to define markup language. It is not case sensitive, it is a case sensitive. In HTML there are predefined tags are used, as I already discussed, that BR, head tag, body tag. And XML we can create our own tags. It is a static and it is a dynamic in nature. Example of HTML body एंड HTML ये हमारा डिस्प्ले करने के लिए पैराग्राफ, एंड बॉडी को क्लोज टैग, एंड HTML का क्लोज टैग। वेयर एज इन XML देयर इज अ कॉलेज, क्लास नेम, क्लास को क्लोज किया, कॉलेज को क्लोज किया। एंड इसमें दिस इज अ प्रीडिफाइंड टैग, दैट आर प्रीडिफाइंड टैग, एंड देयर आर अ कस्टम टैग्स। इसमें कोई भी, ऑल द टैग्स आर डिफाइंड बाय द यूजर. So this is our introduction about the XML, and the rest of the XML topic is discussed in the next video. Thank you for watching.